اگر زندگی میں محبت کی اصل حقیقت چاہے جانا یا کسی کو چاہنا ہے تو پھر میں نے حقیقت کا سامنا کرنے کی سزا پائی ہے۔ سزا بھی اس وقت ملی جب میں اس بات سے ناواقف تھی کہ میں کسی جرم میں ملوث ہوں۔ اس کم عمری میں محبت یا اسے جڑے کسی بھی لمحے یا جذبے سے ملنے والے دکھ کی پاداش کو سہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں ایک ایسی زندگی میں تھی جہاں میرا کردار خوش مزاج، ہنسمکھ اور دوسروں کو خوش رکھنا تھا۔ لیکن اچانک زندگی کے اس موڑ پر جب میں صرف 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، اس معصومیت میں مجھ سے میرا خوش مزاجی کا کردار لے لیا گیا، محبت کو مجھ پر طاری کر دیا گیا، اور پھر زندگی نے حیات ہونے کی سزا پائی۔ میں نے محبت میں ڈوبے ہونے کی سزا پائی، اور محبت کے اس راستے میں وہی دوریاں حائل ہو گئیں جو ازل سے اس کا مقدر چلتی آ رہی ہے۔ اس قدر کم عمری میں مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ محبت راز ہے جو اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو اس کے حصار میں آتا ہے۔ محبت ایسی زنجیر ہے جس میں جکڑنے کے بعد آزادی شاید ہی ممکن ہو۔ یہ ایسی رسی ہے جس کے ایک طرف انسان خود اور دوسری جانب محبوب ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرا حصہ جتنا قریب اور خود سے منسلک دکھائی دیتا ہے اتنا ہی کٹھن اور دور ہوتا ہے، اور یہی دوری صدیوں کی مسافت پر محیط ہو جاتی ہے۔ اس مسافت کا اختتام فقط موت پر ہی ہوتا ہے۔ میری کٹھن زندگی کی ادھوری داستان میرے بچپن میں اس وقت شروع ہوئی جب میں نے 9ویں جماعت میں ایڈمیشن لیا۔ اسکول کی ایک پرانی عمارت نہایت عمدہ طرز پر تیار کی گئی تھی، جہاں میٹرک تک مخلوط تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم اچھی ہونے کی وجہ سے مجھے اس اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میں ایک ہونہار اور محنتی طالبہ تھی، پڑھائی میں خاصی دلچسپی رکھتی تھی۔ ابھی نیا اسکول، نئے لوگ، نئے دوست اور نئے اساتذہ تھے، میری کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ اسکول جاتے ہوئے مجھے 3 دن ہوئے تھے۔ میں ابھی سب میں گھل مل رہی تھی کہ میری نظر اپنی کلاس کے ایک لڑکے پر پڑی۔ پہلی نظر میں اسے دیکھتے ہی مجھے اپنائیت کا احساس ہوا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ وہ اپنا اپنا سا ہے۔ مجھے اس دن سے وہ اچھا لگا تھا۔ میں نے اس کا نام جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا وہ ایان ہے۔ بہت ہی مختصر اور خوبصورت نام تھا اس کا، بالکل اس کی طرح۔ یہ پہلا جرم تھا میرا کہ میں نے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سے ہر روز میں اس کو دیکھتی تھی۔ اس وقت میں اس بات سے ناآشنا تھی کہ ایان کو یوں روز دیکھنا مجھے اسے محبت میں مبتلا کر رہا ہے، اور نہ ہی اس بات کا علم تھا کہ یہ محبت کسی تباہی کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میری ایک اچھی دوست آمنہ تھی جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ پڑھائی کے وقت بھی ہم مل کر پڑھتے اور فارغ وقت بھی اکٹھے ہی گزارا کرتے۔ ایک دن اس نے مجھ سے یوں ہی اچانک پوچھا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور ایک دم چونک گئی کہ میں نے تو اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، نہ ہی کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، تو یہ کیسے جانتی ہے؟ اور میں نے یہاں انجانے میں محبت کی دوسری غلطی کی کہ اس کو بتا دیا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے کلاس میں ایان پسند ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ایان اس بارے میں کچھ جانتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ
मैंने उसको कुछ नहीं बताया। वो कहने लगी, मोहब्बत इजहार चाहती है। तुम अयान को बता दो कि तुम उसको पसंद करती हो, वरना एक अधूरी मोहब्बत रहेगी और तुम फिर सारी जिंदगी इस पछतावे में रहो कि काश मैंने उसको बता दिया होता। इससे बेहतर है कि आज ही बता दो। मुझे लगा ये भी ठीक बात है कि बाद के पछताए की बजाय मैं आज ही इकरार मोहब्बत करूं, क्योंकि पछताने का दुख बहुत बड़ा दुख होता है और उसका अजाला उस वक्त मुमकिन नहीं होता, क्योंकि माजी कभी लौट के वापस नहीं आता। उस वक्त बस दुख ही बचता है। आमना कहने लगी, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करती हूं। उसने एक कागज पर लिखा, अयान, ज़ारा तुमसे मोहब्बत करती है, तुम भी उसका जवाब दो। और ये सफ़ा अयान को थमा दिया। उसने इस सफ़े पर मेरा नंबर मांगा और कहा मैं उससे खुद बात कर लूंगा, और रात 12 बजे कॉल करने का कहा। अयान से बात करने के लिए मुझे पहले अपनी बहन को सब कुछ बताना पड़ा, क्योंकि मोबाइल उसके पास होता था और अगर उसको भी ना बताती तो मुझे कभी भी बात करने की इजाज़त ना देती। पहली बार बातचीत फ़कत हाल अहवाल तक ही महदूद रही, मगर उसके बाद गुफ्तो शुनीद का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि मेरी एकतरफा मोहब्बत अब दो तरफा है। हम दोनों आपस में ढेरों बातें किया करते। रात मोबाइल पर बात होती, सुबह स्कूल में भी मिला करते। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी, और जब जिंदगी में मनपसंद शख्स मिल जाए तो हुस्न में मजीद इजाफा हो जाता है। हम एक दूसरे को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था अगर हम में से एक भी चला गया तो दूसरे की जिंदगी वहीं ठहर जाएगी और मौत उसका मुकद्दर बन जाएगी। एक दूसरे के बगैर रहने का सोचकर भी रूह कांप जाती थी और दिल यूं धड़कता था जैसे कोई मुखालिफ फौज पर जंगी हमले के दौरान अचानक तीरों की बारिश करे और मुखालिफ फौज के जंगजू सिपाही एक ही तीर के वार से जिंदगी की बाजी हार जाएं। मैं इस हद तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी कि सोचती थी कि अगर इंसान की जिंदगी की असल हकीकत उसकी सोच है तो मेरी सोच भी तुम हो। अगर जिंदगी की हकीकत रूह है तो इस रूह का सुकून भी तुम हो, और अगर रूह की हकीकत जिस्म है तो सुनो, फिर मेरे जिस्म का, मेरी रूह का लिबास भी तुम हो। मतलब अगर सभी कुछ तुम हो तो मैं फिर भी मैं नहीं हूं, मैं भी तुम हूं। यूं ही मोहब्बत की शिद्दत में 2 साल गुजरे और अब हम 10वीं जमात में थे। सालाना इम्तिहानात भी करीब थे। उन्हीं दिनों खानदान में एक शादी थी। सब घर वाले उस शादी में शिरकत करने के लिए कराची जा रहे थे। सिर्फ बाबा, मैं और मेरी बहन घर में थे। बाबा को भी किसी जलसे पर जाना था, मतलब घर में मैं और मेरी बहन थे। मैंने सोचा क्यों ना अयान को घर बुला लूं, हम दोनों मिल भी लेंगे और कुछ वक्त भी साथ गुजर जाएगा। मैंने उसको कॉल की और घर बुला लिया। शाम के 7 बज रहे थे और सब लोग कराची के लिए घर से निकले। बाबा जलसे में गए और उनके जाने के बाद अयान घर आया। अयान से स्कूल के अलावा मैं पहली बार कहीं मिली थी, और वो भी अपने घर में। ये ख्याल ही मुझे बहुत हसीन लगता था कि अयान पहली बार मेरे घर आ रहा है। हाँ, लेकिन ये बात और थी कि वो सबसे छुप कर आया था। लेकिन अपने घर जैसी पुरसुकून जगह पर मनपसंद शख्स से मिलना, ये भी मोहब्बत का एक खूबसूरत एहसास है। वो घर आया और मैं उसे देखकर यूं खुश हुई जैसे सदियों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई हो, और वो भी मुझसे मिलकर उतना ही खुश था।
मैं उसे अपने कमरे में ले गई। हम बैठे, दरवाज़ा बंद था और हम दोनों बातें करने लगे। अभी आयान को आए 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया। हम नहीं जानते थे कि 10 मिनट पहले मिलने वाली वो इंतहा की खुशी 10 मिनट बाद आफत लेकर किस्मत की चौखट पर हमारी तकदीर का भयानक फैसला करने के लिए अचानक किसी ऐसे लम्हे का इंतजार कर लेगी कि उसके बाद हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। मामला कुछ यूं था कि बाबा किसी काम से घर वापस आ गए। उनके आने की आवाज सुनी तो मैं घबरा गई और फौरन डर के मारे कमरे से बाहर आई। सामने बाबा को देखा जो छत की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रही थी, और मैं खौफ से इस कदर सहमी हुई थी कि कोई जवाब देने के काबिल ना थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैं कांपती हुई आवाज में बोली कि मैं बाबा, मैं कपड़े चेंज कर रही थी। ये कहते ही मैं दूसरे कमरे में भाग गई। बाबा को इससे पहले अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। वो कमरे में चले गए। सामने अयान को बैठा देखा। क्या कयामत गुजरी थी उस लम्हे मुझ पर और अयान पर। मैं इस कदर डरी हुई थी और बेहिम्मत थी कि मैंने रोना शुरू कर दिया। बाबा ने दरवाजा बंद किया और अयान को बहुत ज्यादा मारा। मैं रो रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी बहन मेरे पास थी। वो मुझे कह रही थी कि जाओ और अयान को बचाओ, बाबा को रोको, जाओ कुछ तो करो। लेकिन मैं हद से भी ज्यादा डरी हुई थी और सहमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मुझ पर टूट पड़ा हो, जमीन मुझ पर तंग हो रही हो, दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, जिगर पे खून के तीर वार कर रहे हो। रूह सफे मातम बिछाए हुए खुशियों की चौखट के साथ लपक कर मेरे वजूद के जिंदा होने की नफी करते हुए मौत की भीख मांग रही हो। गोया कि मेरा सारा वजूद ही उस सारी सूरत हाल को भयानक करार देते हुए डर से निजात पाने और अयान को बाबा से बचाने की उन नाकाम कोशिशों में लगा हुआ था, जिनके आगे और पीछे फकत मेरी दर्द भरी सिसकियां थीं। मेरे अंदर मेरे अपने ही वजूद की तोड़ फोड़ की आवाजें यूं महसूस हो रही थी जैसे जैसे किसी मुसल्लह फौज की खून आलूद तलवारों की झनकारें सुनाई दे रही हो। खैर, बाबा ने अब फैसला सुनाने के लिए उसके घर वालों को बुलाया। चूंकि उसके बाबा नहीं थे, इसलिए उसकी वालिदा और भाई आए। बाबा ने उनको सारा माजरा बयान किया और कहा कि इसको समझा लो, आइंदा ये लड़का कभी मेरी नजरों के सामने ना आए। अगर कभी मैंने इसको देख लिया तो इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। उसकी वालिदा मिन्नतें करने लगी कि आप इसको छोड़ दें, आइंदा ये ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, इस बार इसको माफ कर दें। खैर, वो तो चला गया, लेकिन अब मेरी बारी थी। अब बाबा ने मुझसे भी मेरी मोहब्बत का हिसाब लेना था। मुझे भी तो इस रिश्ते की कीमत चुकानी थी, क्योंकि हम दोनों इस रिश्ते में बराबर के हिस्सेदार थे। इसलिए सजा के भी दोनों ही मुस्तहिक ठहरे। मेरे साथ भी वही सुलूक हुआ। बाबा ने मुझे बहुत मारा। मैं बेटी थी, लेकिन मोहब्बत तो मैंने भी की थी, इसलिए उन्होंने मुझे भी मारा। मामा को उसी रात कराची की शादी से वापस बुला लिया गया। मामा ने भी आकर मोहब्बत की जुर्म की सजा दी और यूं मेरी मोहब्बत अधूरी दास्तान में बदल गई। आज जहां वो दिन था,
जब मेरी खुशी की इंतहा न थी कि अयान मेरे घर आ रहा है, वहां साथ ही तकदीर ये फैसला भी करेगी, मुझे नहीं पता था। आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। मैंने नहीं सोचा था। किस्मत ने हमें मिलवाया और आज किस्मत ही हमें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर रही थी। उसके बाद हर जगह मुझे अपनी ही गलती महसूस हुई। मुझे लगा मैंने गलत किया जब मैंने उसे मोहब्बत की, या अगर मोहब्बत हो भी गई थी तो मैं आमना को ना बताती, या अगर बता भी दिया था तो अयान से उसका इजहार ना करती। ये भी कर लिया था तो काश मैं उसको घर ना बुलाती। उस दिन वो घर ना आता तो शायद हम आज भी साथ होते, या अगर ये सब भी हो गया था तो काश मैं इतनी बहादुर और बाहिम्मत होती कि उस रात बाबा को बता सकती कि मैं अयान को पसंद करती। बाबा को कहती कि उसको ना मारे, उस रात उससे निकाह कर लेती। लेकिन अब तो वो जा चुका था और अब मैं कर भी क्या सकती थी। अब मैं तन्हा और सब घर वालों की नजर में पड़ी हूँ। बाबा ने तो मुझे माफ भी नहीं किया अभी तक। अब जिंदगी बेरंग, बेकैफ और कठिन नजर आती। वो हंसने हंसाने वाली ज़ारा कहीं खोकर रह गई है। दोस्तों, ये थी ज़ारा की अधूरी दास्तान। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कंवर को इजाज़त दीजिए। अलविदा।